Hello viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. As you are aware, we have already shown in our previous video who all were the awardees of Paramveer Chakra. तो आज हम सबसे प्रथम परमवीर चक्र अवार्डी के बारे में जानेंगे और वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। कुछ एक बातें मैं उनकी पहले बतलाना चाहूँगा कि क्या उन्होंने किया और कैसे किया। हुआ ये था कि on 3rd November 1947, Major Somnath Sharma's company was ordered on a fighting patrol to Bandgaon in Kashmir Valley. He reached his objective at first light on 3rd November and took up position south of Bandgaon at around 1100 hours. The enemy, estimated at about 500 of them, they attacked his company positioned from all the three sides. The company began to sustain heavy casualties. Fully realizing the gravity of the situation and the direct threat that would result to both the aerodrome and Srinagar, Major Somnath Sharma urged his company to fight the enemy tenaciously. With extreme bravery, he kept rushing across the open ground to his sections, exposing himself to heavy and accurate fire to urge them to hold on. Keeping his nerve, he skillfully directed the fire of his sections into the ever-advancing enemy. He repeatedly exposed himself to the full fury of the enemy fire and laid out cloth strips to guide out our own aircrafts onto their targets in full view of the enemy. Realizing that casualties had affected the effectiveness of his light automatics weapons, this officer, whose left hand was in plaster, personally commenced filling magazines and issuing them to the light machine gunners, those LMG gunners. A mortar shell in the meantime landed right onto this position, and the remnants withdrew only when almost completely surrendered. His inspiring example resulted in the enemy being delayed for over 6 hours, thus gaining time for our own reinforcements to get into the position to stem the tide of the enemy advance. His leadership, gallantry and tenacious defense were such that his men were inspired to fight the enemy by 7-1. 6 hours after this gallant officer had been killed, they continued fighting. He has set an example of courage and qualities seldom equaled in the history of the Indian Army. His last message to the brigade headquarters a few moments before he was killed was, "The enemy only 50 yards away from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last round." So this was his last communication with the brigade headquarters. So let's see through a video which has been telecasted earlier. दूरदर्शन चैनल पे ये पहले भी दिखाया जा चुका है परमवीर चक्र के सीरियल के रूप में। तो आइए उन्हीं की गाथा सुनते हैं दूरदर्शन के माध्यम से। जय हिंद। ये मेडल, ये पदक देखने में छोटा, लेकिन मैदान जंग में बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम माना गया है। यही परमवीर चक्र है। इसे वही हासिल करता है जो देश की रक्षा में जान की बाजी लगाकर अपनी बहादुरी का जौहर दिखाए, नामुमकिन को मुमकिन साबित कर दे। आजादी के 40 वर्षों में सिर्फ 17 लोगों को यह पदक प्राप्त हुआ है। हम 15 परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन की झलकियां एक एक एपिसोड के जरिए पेश करेंगे। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो
मरते मरते भी गाते रहे। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खूब बहाते रहे। तेरी धरती को चूमे गगन, है वतन मेरे वतन, मेरे वतन। सन 1941 से हिंदुस्तान की फौज अंग्रेजी राज के लिए बर्मा में जापानियों से लड़ती रही और वहीं मेजर शर्मा भी थे और उनके ऑर्डरली बहादुर सिंह दोनों बड़ी बहादुरी से लड़े। 1945 में वो एक घमासान लड़ाई के बाद अपने ऑर्डरली को मौत के मुंह से बचा के लाए। अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एटम बम फेंका। सोमी सोमी, सुना तूने? लड़ाई खत्म हो गई। अचानक अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया है। शहर का शहर गल पिघल कर तबाह हो गया है। माय गॉड। खबर ये है सोमी कि तुम्हारे डैडी आज ही रात को कुआलालंपुर पहुंच रहे। ये हमारा अंग्रेज कमबख्त सीईओ तुम्हें जाने की कभी इजाजत नहीं देगा। और आज तो तुम ड्यूटी पर हो ना? तो ड्यूटी के बाद रात को चला जाऊंगा ना, सुबह तक पहुंच जाऊंगा। तो फिर ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। हम सब चलते हैं, मैं जरा जीप का इंतजाम करता हूँ। यार माटना, हाँ अब तो जंग खत्म हो गई, हम सब न जाने कहां कहां बिखर जाएंगे। हम इतने जमाने तक इतने दोस्त रहे कि लोग तो हमें भाई समझते हैं। हाँ तो क्यों न इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए? अरे भाई और बहनों एक ही बात है ना? हैं? तय हुआ? अरे क्या तय हुआ भाई, जरा हम भी तो सुने। यार टबी माटना ने मेरी बहन का रिश्ता मंजूर कर लिया। अरे मुबारक हो सोमी, मुबारक हो। Thank you. तिवारी मुबारक हो। थैंक यू। सोमी घर पहुंचते ही अपनी अम्मी जान को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। जरूर। उन्हें तो मैं लाहौर में ही मिल चुका हूँ। और सोमी, तुम्हारा कहीं इश्क विश्क का चक्कर है या नहीं? अरे ये बड़ा ही गुन्ना है। अच्छा, ये कभी नहीं बताएगा। वाह, तस्वीर छुपा रखी है और वो भी गीता में। अरे लाओ जरा देखे तो सही। गंदे हाथ हटाओ, गंदे हाथ हटाओ। अरे यार गंदे कहाँ हैं? देख लो, बिल्कुल साफ तो हैं। अम्मा मुझे तो दिखाओ, मेरे तो बिल्कुल गंदे नहीं। नहीं तुमको भी नहीं दिखाऊंगा। देखते हैं कब तक छुपाते हो। ऐसे राज देर तक नहीं छुपते सोमी। अरे हाँ, तुम्हारी जीप का इंतजाम हो गया सोमी, लेकिन अफसोस कि मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? कर्नल साहब ने तुम्हारी ड्यूटी लगा रखी जो मैंने ले ली है। अब 10 से पहले निकल जाना, वरना देर हो जाएगी। और यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा। यार थैंक यू वेरी मच टबी। थैंक यू टबी। इट्स माई प्लेजर। सोमी, अरे सोमी बेटे, तुम तो कुआलालंपुर में थे। सारी रात जीप चला के आए डैडी, खास आपसे मिलने के लिए। ओह, मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ। सिंगापुर मुझे पहुंचना है। मुझे मालूम है आप सिंगापुर जा रहे हैं। 2 मिनट मिल लिए, इन हालात में यही बहुत है। डैडी आप मेरे दोस्त को तो जानते होंगे, किशन तिवारी। माटना। माटना? ओह माटना, माटना। तुम सोमी के दोस्त हो, मेरे लिए सोमी जैसे हो। थैंक यू सर। हाँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? यहाँ से वापस जाऊंगा लाहौर, वहां से कश्मीर। अगर घर के सब लोग कश्मीर में मिले तो इस वक्त तो सब बिछड़े हुए हैं। गुड आइडिया। हाँ, तुम अपनी मम्मी से कहना मैं भी कश्मीर पहुंच रहा हूँ, और तुम अपने पहुंचने की इत्तला खत लिख कर दो। डैडी मैं अचानक ही पहुंच जाता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। वेरी गुड, अच्छा ख्याल है तुम्हारा। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तू दुख हरता, तू सुख दाता, पालनहारा तू ही विधाता।
तुझ बिन कोई न मेरा, तुझ बिन कोई न मेरा, तू संग हो तो हर कोई मेरा। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। हेलो हेलो, मैं रंजीत बोल रहा हूँ, कर्नल रंजीत राय। जी, सोमी भैया, कर्नल राय। कर्नल राय? हेलो सर। अरे मुबारक हो सोमी, बड़ी बहादुरी से लड़े 4 साल। तुम्हें डिस्पैचेस में भी मेंशन किया गया था। थैंक यू सर। अब जल्दी तरक्की मिलनी चाहिए भाई, तुम्हारा हक है। शुक्रिया सर, लेकिन मैं तो एक अरसे के बाद लौटा हूँ सर, यहाँ के हालात से कम ही वाकिफ हूँ। मुल्क में बहुत उथल पुथल है सोमी, ऐसा लगता है कि हमारे देखते देखते हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। मुझे तो बंटवारा होता नजर आता है। बंटवारा? 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। सोमनाथ का दोस्त टबी पाकिस्तान की फौज में चला गया। सोमनाथ की ड्यूटी दिल्ली में लगी, जहां फसाद हो रहे थे। बंटवारे के 2 महीने के अंदर अक्टूबर सन 47 में कश्मीर पर कबायलियों और पठानों ने हमला कर दिया। इनमें पाकिस्तानी फौजी भी भेष बदलकर शामिल हो गए थे। क्या हुआ हॉस्पिटल में? हाँ कमला, मैं तुम सबको लेने आ रहा हूँ। बताते क्यों नहीं? सोमी भैया का एक्सीडेंट हो गया है, बांह टूट गई है। कैसे? शहर में फसाद हो रहे हैं, उसकी रेजिमेंट वहीं ड्यूटी पर है, वही सब रोकते रोकते चोट आ गई होगी। कृष्ण तिवारी आ रहे हैं, हम सबको हॉस्पिटल ले चलेंगे। सोमी? अरे मम्मी, ये क्या हो गया सोमी? अरे कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी खेल कूद में। कैसे हो सनी? अरे थैंक यू। अरे डैडी, अब जरा आराम करो, दिन रात ड्यूटी पर रहते हो। अब आप ऑल इंडिया रेडियो से खबरें सुनिए। कश्मीर में हालात और भी संगीन हो गए हैं। कहा जाता है कि श्रीनगर खतरे में है। बारामुल्ला में कबायली और पठानों के साथ घमासान लड़ाई हुई, जिसमें हमारे कई जवानों के साथ कर्नल राय भी शहीद हो गए। इधर श्रीनगर की... अरे ये अपने कर्नल राय, उसे कश्मीर भेजा गया था। हमारी रेजिमेंट ने बर्मा और मलाया में नाम कमाया। यहां दिल्ली में फसाद रोकने की जिम्मेदारी हमें दी गई, जिसे हमने बखूबी निभाया। आज कश्मीर को बचाने का मौका हमें दिया गया है। हमारी 4 कुमाऊं रेजिमेंट की फर्ज कैसे निभाएगी, इस बात का जवाब मैदान जंग में दिया जाएगा। रेजिमेंट सुबह हवाई जहाज से रवाना होगी। दैट्स ऑल। मेजर सोमनाथ शर्मा, तुम्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं है। सर, मेरी कंपनी के जवान मेरे बगैर जाएंगे? इस टूटी बांह की वजह से? हां, बहस ना करना ही मुनासिब होगा शर्मा। सर, मैं बहस कैसे कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ आपके सामने खड़ा होकर एक याद ताजा करना चाहता हूं, इजाजत हो तो। सर, मैंने, हम सब अफसरों ने, आपने भी सर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग पाई है। उसी एकेडमी ने हम सबको अफसर बनाया है। सर, वहां सुनहरी हरफों में लिखा गया है, हर अफसर का पहला फर्ज हर वक्त, हमेशा, हर हालत में अपने देश के मान, अपने देश की मर्यादा, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना है। सर, मैं तो वहां से यही कसम खाकर चला था। मैं 4 साल अंग्रेजी हुकूमत के लिए बर्मा में जापानियों से लड़ता रहा हूं सर, और जब पहली बार अपने देश के लिए लड़ने का मौका आया तो मुझे ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि
मैं अपनी वो कसम तोड़ दूं, अपने जवानों को अपने बगैर लड़ाई में जाने की इजाजत दे दूं और जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहूं? ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज डोंट डू दिस सर, प्लीज सर। ओके सोमी, मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें जाने की इजाजत देता हूं। थैंक यू सर। कुकू। सोमी भैया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या बात है? मैं सुबह कश्मीर जा रहा हूं लड़ाई में। मैं ये बात मां से नहीं कह सकता, मेरे लिए तुम कह दो। पिछली बार लड़ाई पर गए थे तो मालूम है माँ की क्या हालत हुई थी। मुझसे नहीं होगा। मेरी मदद तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? आओ। नहीं। आओ ना। मम्मी। क्या? माँ वो। अरे बोलती क्यों नहीं? क्या बात? सोमी आया है। माँ मेरी रेजिमेंट कश्मीर जा रही है, मुझे भी जाना होगा। कब? सुबह तड़के। माँ के लिए पानी ला। लेकिन तुम्हारी माँ कैसे जा सकते हो यूं? तुम्हें इजाजत किसने दी? इजाजत मिल गई है माँ। जरूर जिद की होगी तुमने। माँ हौसला रख माँ। हौसला तो करना ही पड़ेगा। कर लूंगी। पानी माँ। तुम जाना चाहते हो सोमी? कश्मीर में हमारे कई जवानों के साथ कर्नल राय भी शहीद हो गए। सोमी ना जा, सोमी ना जा। माँ मेरी जेब में देख क्या है, देख तो सही, देख तो क्या है। ये गीता तूने मुझे दी थी माँ, ये लड़ाई में हर वक्त मेरे साथ रही है। तुझसे बढ़कर मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, ये बात अटल है। पर ये गीता जो तूने मुझे दी है, ये गीता कहती है कि अपने कर्म से मत भागो, अपने फर्ज से मुंह मत मोड़ो। अब एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है मां, और मैं जानता हूं कि तू मुझे कायर बनने नहीं देगी। मां मुझे विदा कर मां। जा सोमी। आशीर्वाद नहीं देगी तो कैसे जाऊंगा? जा मेरी बेटी। माँ का ख्याल रखना। सोमी भैया। सनी, यही फर्ज है इस खानदान का। जब देश पुकारता है तो सवाल नहीं पूछे जाते, संकट आता है तो पीछे नहीं हटा जाता। मैं तो मोर्चे पे जा रहा हूं, अब तू सोच ले तुझे जिंदगी में क्या करना है। सर रिलैक्स।
ऐन वक्त पर आ गए मेजर। यहाँ कश्मीर में आजकल हालात बहुत नाजुक हैं। पठान और कबायली न जाने कब से हमले की तैयारियों में थे और हमें भनक तक नहीं पड़नी थी। ये श्रीनगर, ये हमारा हवाई अड्डा, हम इस वक्त यहाँ हैं। यहाँ से सिर्फ 40 मील दूर बारामूला है जो इस वक्त दुश्मन के कब्जे में है। दुश्मन की फौजें आगे बढ़ रही हैं। दुश्मन गुलमर्ग से भी आगे बढ़ रहा है और हर मुमकिन कोशिश में है कि हमारे हवाई अड्डे पर कब्जा कर ले। और एक बार हमारा हवाई अड्डा गया तो समझो कश्मीर गया। यहां से सिर्फ 3 मील दूर ये गांव है बडगाम, एक सूखे नाले के किनारे। हमें दुश्मन को यहां रोकना है। तुम अपनी डी कंपनी लेकर फौरन यहां पहुंचो। एहतियातन चार्ली कंपनी भी साथ रहेगी। अगर दुश्मन यहां न मिले तो मागम पहुंचो। आज शाम तक हमारे और हवाई जहाज नहीं आ सकते। आज शाम तक हमें अपना हवाई अड्डा हर कीमत पर बचाना है। वक्त बहुत कम है, जाओ। मेजर सोमनाथ शर्मा, आज शाम तक कश्मीर की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। 3 नवंबर सन 47 की सुबह को मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी 4 कुमाऊं रेजिमेंट के साथ बडगाम पहुंचा। कबायली पहुंचे नहीं लगता है। यहाँ बडगाम में तो बिल्कुल अमन लगता है। लीमा वन, मैसेज ओवर। लीमा वन, ओके ओवर। फेच टाइगर, ओवर। प्लीज 1 मिनट, ओके ओवर। लीमा 1 टाइगर लिसनिंग, पास योर मैसेज, ओवर। अगर आप ठीक समझें तो चार्ली कंपनी को मागम भेज दिया जाए और डेल्टा कंपनी थोड़ी देर यहाँ रुक जाए, ओवर। तुम हालात को देखते हुए जो मुनासिब समझो वही करो, आउट। कमांडर साहब ने कहा है आप चार्ली कंपनी लेकर मागम पहुंच जाएं। ठीक है चार्ली कंपनी, हम मागम चलेंगे। चार्ली कंपनी सावधान, बाएं गुम, तेज चल। डी कंपनी ट्रेन चेक खोलो। अरे सुनो भाई, सुनो जरा यहां आओ। अरे डरो नहीं, आओ आओ आओ, आ जाओ। जी साहब। अरे डरते क्यों हो भाई? देखो यहाँ गांव में तुम्हें कोई खतरा तो महसूस नहीं होता? जनाब, कबाइलों को बहुत डर रहता है। उन्होंने बहुत सारे गांव को लूट लिया है। देखो तुम्हारी हिफाजत के लिए अब हम आ गए हैं। ये तुम्हारी फौज है। हमारे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो कबाइली यहाँ आए तो हम लोग तुम्हारे लिए अपनी जान लड़ा देंगे, समझे? घबराओ मत। और गांव में जाके सबसे कह दो, जाओ। लेकिन न इस गांव वाले को और न सोमनाथ को यह पता था कि सूखे नाले पर जो लोग बैठे हैं वो कश्मीरी नहीं बल्कि कश्मीरी लिबास में लुटेरे कबायली हैं और उनके पास हथियार भी हैं। डी कंपनी फौरन। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग यहां किस लिए जमा हुए हैं। टेक पोजीशंस। Call Tiger on the set, over. Yes, Tiger speaking, over. गांव की तरफ से फायरिंग हो रही है। तो तुम फायरिंग का जवाब क्यों नहीं देते? गांव में हमारे आदमी भी हैं, औरतें, बच्चे। हमारी तरफ से फायरिंग कैसे हो सकती है? ओके, तुम कमांड में हो, जो मुनासिब समझो वही करो। आउट। सर फायर करें। गांव की तरफ फायरिंग नहीं होगी। फायरिंग बंद हो गई साहब।
जब तक हमारी और फौज नहीं आ जाती, कश्मीर की किस्मत आपके हाथ में है। मुकाबला मजबूती से किया जाएगा। मुकाबला मजबूती से किया जाएगा। सर दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। उधर से और आ रहे हैं। हमला शुरू हो गया है। 3 तरफ से सैकड़ों की तादाद में। दुश्मन आगे न बढ़ने पाए, डटे रहो। बाएं भी दुश्मन है। बहादुर, ये एम्यूनिशन ले जाओ। ये लो एम्यूनिशन।
हम लोग मुकाबला भी जोरों से कर रहे हैं, लेकिन हमारी बंदूकों की गोलियां खत्म होती जा रही हैं। हमें एम्यूनिशन की अर्जेंट जरूरत है। ओवर। जब तक हवाई जहाज नहीं उतरते कुछ नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। दुश्मन यहां से हवाई अड्डे की तरफ नहीं बढ़ने पाएगा। तो एम्यूनिशन के करीब गोलियां आ रही है। अगर एम्यूनिशन पर बारूद आ गई तो सब कुछ उड़ जाएगा। नहीं, अभी हमला नहीं रुका। खतरा बढ़ता जा रहा है। दुश्मन सिर्फ 50 गज के फासले पर है। जब तक हवाई जहाज नहीं उतरते तब तक दुश्मन को रोकना लाजमी है। हम आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सोमी, 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 सोमी। लगता है सोमी गया। दिल्ली कांटेक्ट करो। साहब, दिल्ली कांटेक्ट नहीं हो सकता। ओ तो फिर एयरपोर्ट कांटेक्ट करो। दिन भर हमले होते रहे। दिन भर सोमनाथ मुकाबला करता रहा। जमीन सैकड़ों लाशों से भर गई। आखिर शाम को हवाई जहाज फौज लेकर पहुंचा। सोमनाथ ने कश्मीर को बचा लिया। बच गया। इसकी जेब से सिर्फ किताब ही निकली। ठहरो, ये गीता है, इसका कुरान शरीफ। जैसे मैं अपनी जेब में कुरान शरीफ रखता हूं, वैसे ही अपनी जेब में गीता रखते हैं। जाओ। वाह, गीता में अम्मी जान की तस्वीर रखी है। सोमी, तभी को माफ कर देना दोस्त। शाम तक सोमनाथ की मदद के लिए फौज तो आन पहुंची, लेकिन शाम तक सोमनाथ अपना फर्ज अदा कर चुका था। तेरे आशिक दुआ कर चले,
एक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। यूं कर्तव्य पालन से बढ़कर बहादुरी और बलिदान के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। तेरा महके हमेशा चमन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। जय हिंद व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरियल आज का पसंद आया होगा एंड वी विल कंटिन्यू विद ऑल दीज ब्रेव एक्ट्स ऑफ आवर परमवीर चक्र रिवॉर्डीज। सो प्लीज सब्सक्राइब अस, like our videos and do share as much as possible so that all other get benefited from this, and you too keep watching our all other next videos. So don't miss out on that. For that please subscribe, and thank you and Jai Hind.